پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ سردار اس پر آخری عمل کرنے والا تھا۔ پہلے بھی کافی عمل ہوئے ہیں مجھ پر، تو ایک اور صحیح، لیکن شہزادی فکر کی بات تو ہے، یہ عمل سردار ناگ دیوتا شوگاما کے مندر میں کرنے والا ہے، اور وہ اسی بات پر بضد ہے۔ اس نے میری بات بھی ٹھکرا دی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شوگاما مندر، جس میں آج تک کوئی داخل نہیں ہوا تھا، صرف سردار اور ایک بوڑھا آدمی جو رہتا بھی مندر میں ہی تھا، اس مندر سے مکمل طور پر واقف تھے۔ مندر جنگل کے سب سے زہریلے سانپوں کی کمین گاہ میں واقع تھا، اور آج تک غلطی سے 2-3 آدمی جو ادھر چلے بھی گئے وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے، بلکہ جب بھی کوئی ناواقف نادانستہ طور پر وہاں چلا جاتا تو ساری رات تیز ہوائیں چلتی رہتی، جنگل میں کئی درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے، کئی مقامات پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور دور آسمانوں پر گہری سرخی نظر آنے لگتی۔ شہزادی، کیا آپ تیار ہیں؟ بابن کے چہرے پر شاجی کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ہلکی سی امید کی کرن لہرائی۔ وہ شاجی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اسے خطرات کے منہ میں جاتا دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ وہ چونک پڑی۔ ہاں بابن، میں کسی خطرے سے ڈر کر اپنی منزل سے دور نہیں جا سکتی، وہ پرعزم لہجے میں بولی، اور بابن کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے بے چارگی سے شاجی کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد باہر چلی گئی۔ ارے شامو، تم! بابن دروازے پر کسی سے ٹکرا گئی۔ شاجی چونک پڑی۔ پھر آؤ شامو، کہتی ہوئی وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شامو آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر چلا آیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحہ کے لیے شاجی سے ملی، پھر وہ نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو شامو۔ شاجی نے اسے اپنے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔ شاجی کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ کیسے آئے ہو شامو؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایسے ہی شہزادی، سردار نے کہا تھا کہ آپ اکیلی گھبرا رہی ہوں گی، اور شادی کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تو کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا؟ سردار کے حکم پر اس کی تنہائی دور کرنے آیا ہے؟ تو تم اپنی مرضی سے نہیں آئے، وہ آہستہ سے بولی۔ اپنی مرضی؟ وہ آہستہ سے کہہ کر مسکرا پڑا۔ نہیں شہزادی، میں نے جو بھی کام اپنی مرضی سے کرنا چاہا وہ کبھی مکمل نہیں ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ تو شامو، تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادی، وہ کھڑا ہو گیا اور کمر پر بندھے ہوئے خنجر پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ غلام اور مالک میں کیا ناراضگی ہو سکتی ہے، پھر غلام کو شکوہ کرنے کا حق بھی کیا ہے؟ شامو، وہ اس کی طرف پلٹی۔ میری طرف دیکھو۔ شامو نے دیکھا تو اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بت کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی شاجی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ دیکھو شامو، تمہارے شاجی ہاتھ باندھے تمہارے سامنے کھڑی ہے، اسے معاف کر دو پلیز، ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں سے۔ میرے شاجی، وہ دھیری سے بڑبڑایا۔ ہاں شامو، تمہاری شاجی، کہہ دو کہ تم نے اسے معاف کیا، کہہ دو شامو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قدموں پر جھک گئی۔ شہزادی، وہ لرز گیا۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے تب تک میں یہ قدم نہیں چھوڑوں گی۔ ان قدموں میں میری زندگی ہے شامو، ان کی دھول کو میری مانگ کا سندور بنا دو۔ کہہ دو کہ تم نے شاجی کی ہر خطا معاف کر دی، کہہ دو شامو۔ وہ اس کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ شامو کی آنکھوں سے سچے موتیوں کی لڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ شامو، تم نے؟ اس نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ شاجی، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ شامو، وہ سسک پڑی۔ تو کتنا عظیم ہے شامو، میں تیری محبت کی بلندیوں کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اس نے جھک کر اسے شانوں سے تھام لیا۔ شاجی نے اس کی طرف دیکھا اور شامو نے آہستہ سے اسے کھڑا کر دیا، پھر بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ 2 سسکیاں ابری اور ان کے آنسو ایک دوسرے کے سینے کی آگ کو بجھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شاجی آہستہ سے اس کے سینے سے علیحدہ ہو گئی۔ شامو نے اس کی آنکھیں پونچھ دیں۔ وہ مسکرا کر پھر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ شامو نے خود کو سرور الفت میں غرق ہوتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے زور سے اسے بھینچ لیا۔ وہ اپنا ہر دکھ درد غم کو بھول گئے۔ محبت کی یہ گھڑیاں طویل ہو گئیں۔ وہ نہ جانے کب تک
इसी तरह दिल और धड़कन के मुसद्दाक लिपटे खड़े रहे। शामू ने अपने होंठ शाहजी की स्याह लंबी घनौर घटा जैसी जुल्फों पर जमा दिए और दोनों मोहब्बत की पुरस्कून दुनिया में गुम हो गए। शामू, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। उसका रुआं रुआं खुशी से कांप उठा। वो आंखों ही आंखों में जाने कब तक बातें करते रहे। फिर शामू को ऐसा महसूस हुआ जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म की ताकत खत्म हो रही हो। शाहजी की आंखों से निकलने वाली बरकी रौ की लहरें धीमी पड़ने लगी। शाहजी ने अपनी आंखें परे हटा ली। शामू अपनी आंखें मलने लगा। ये क्या है शाहजी? वो थोड़ी देर बाद बोला। वो मुस्कुरा पड़ी और शामू को बहुत हसीन मालूम हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वो तवील सांस लेकर, तभी मैं सोच रहा था कि ये कशिश तो सिर्फ सांप का खासा है, लेकिन शामू तुझ पर तो इसका कोई खास असर नहीं हुआ। हालांकि आम इंसान मेरी एक नज़र की ताब नहीं ला सकता। वो हैरत से बोली, हाँ शाहजी, मुझ पर किसी भी नाग की आंखों की उस पोशीदा ताकत का असर नहीं हो सकता। वो क्यों? वो दिलचस्पी से बोली, इसलिए कि मैंने नाग राजा की आंखों में देखते हुए आधी रात गुजार दी थी जब मैं तुम्हारे लिए मनका लेने गया था। अब मेरी आंखों में उन्हीं आंखों की कशिश मौजूद है। वो सर हिलाकर बोली। शामू, मुझे बताओ, तुमने नाग राजा का मनका कैसे हासिल किया? और शामू इस खौफनाक रात का दहशतनाक वाकया सुनाने लगा। कितना खतरनाक काम था, सारा वाकया सुनकर शाहजी ने कहा। अगर तुम्हारे लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो तुम्हारी कसम, शामू इनकार नहीं करेगा, खुद अपने हाथों मौत को सीने से लगा लेगा। और शाहजी ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। ऐसा न कहो शामू, अब तो तुम मेरी जिंदगी हो। अच्छा, अब मैं चलूं? शामू ने आहिस्ता से कहा और उठ खड़ा हुआ। शोगा मंदिर वहां क्यों? वह सवालिया लहजे में बोली। बाबा, मुझ पर कोई अमल करने वाला है। शाहजी शर्म के मारे तफसील ना बता सकी। तो तुम वापस कब आओगी? वो अफसुर्दा सा हो गया। ये तो बाबा जाने, जाने कब काम खत्म हो। शाहजी ने उसके शाने पर सर रख दिया। अच्छा शाहजी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाहजी कुछ ना समझ सकी। थोड़ी ही देर थी कि शामू सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है शामू, कहाँ गए थे? शाहजी उसे गमज़दा देखकर जल्दी से बोली। वो एक तवील सांस लेकर बोला, मैं सरदार के पास गया था। मैंने उसे कहा कि मुझे भी अपने शाहजी के साथ मंदिर में ले जाए। और वो रुक गया और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगा। हाँ, फिर क्या कहा बाबा ने? शाहजी बेचैन हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शामू की हालत बता रही थी कि सरदार ने इनकार कर दिया है और सरदार ने इजाज़त दे दी। वो यकायक सर उठाकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। शाहजी ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने गुस्से से शामू की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत के चश्मे उबल रहे थे। फिर वो वक़्त भी आया जब वो सब शोगा मंदिर पहुंच चुके थे। फिजा सन्नाटे में डूबी हुई थी। मंदिर स्याह पत्थरों से बना हुआ था। उसके चारों तरफ स्याह घास उगी थी, लंबी लंबी स्याह घास जो सांपों की तरह फन उठाए खड़ी थी। उन पर एक शहर का आलम तारी था और आंखें दूर मंदिर पर जमी हुई थी। सरदार ने दोनों हाथ फैला दिए और उसकी आंखें चांद की तरफ उठ गईं। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी जैसे दो दहकते हुए कोयले, जैसे उसकी आंखों में मशलें जल उठी हों। वो एक टिके चांद की तरफ देखे जा रहा था। चांद आहिस्ता आहिस्ता एक बदली में छुप रहा था। फिर वो एक स्याह बदली में गुम हो गया। स्याह और भी खौफनाक हो गई। सकूत की चादर और भी गहरी होगी। जूं नहीं फिजा मुकम्मल अंधेरे में डूबी, सरदार ने जोरदार आवाज में एक नारा बुलंद किया, शोगामा। उसकी फटी हुई दहशतनाक आवाज सुनकर सबके दिल दहल गए। सरदार की आवाज फिजा में गूंजती रही जैसे उनके चारों तरफ एक नादीदा दीवार मौजूद हो, जिस दीवारों से टकराकर आवाज की बास गश्त बहुत देर तक लहराती रही। सरदार ने दोबारा फिर नारा बुलंद किया और फिजा में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी जैसे बादल गरजे हों। सरदार ने जोर जोर से कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। उसकी आवाज़ इस सन्नाटे में अजीब लग रही थी। वो न जाने किस ज़बान में कुछ पढ़ रहा था। फिजा में गड़गड़ाहट बढ़ती गई और साथ ही सरदार की आवाज़ बुलंद होती गई। वो मंदिर पर नजरें जमाए अपने काम में मगन रहा और सब लोग पत्थर के बुतों की तरह अपनी जगह पर जमे सामने नजरें जमाए खड़े रहे।
चाहने के बावजूद वो एक दूसरों की जानब ना देख सके। शाहजी का हाथ अब भी शामू के हाथ में था, लेकिन वो मुजस्समों की तरह साकत थे, जैसे किसी ने उनको जादू के जोर से पत्थर बना दिया हो। सरदार काफी देर तक ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ता रहा। वो बिल्कुल ना समझ सके कि वो क्या कह रहा है। फिजा में बिजली कड़की और सरदार सजदे में गिर पड़ा। उसके साथ ही तमाम लोग सजदे में गिर पड़े। उनको जैसे उन पर अपना कोई इख्तियार ना हो, गैर इरादी तौर पर किसी के हुक्म पर वो सजदे में गिर पड़े हों। सब लोग सजदे में थे कि अचानक उनको महसूस हुआ जैसे तूफान आ गया हो। हवा तेज चलने लगी थी, दरख्त झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी। सरसराहट की एक दहशतनाक समा पैदा कर रही थी। फिर सरदार एकदम घूमा और वहशियाना रक्स शुरू हो गया। सरदार नाच रहा था। बहुत खतरनाक मंजर था जो दिल की धड़कन को महरूम कर देता। सरदार जमीन से 2-2 फुट उछल रहा था, गिरता उठता और फिर नाचने लगता। उसकी खौफनाक आवाजें फिजा को और भी दहशतनाक बना रही थी। कभी यूं लगता जैसे भेड़िया रो रहा हो और कभी यूं लगता जैसे कोई वहशी कहके लगा रहा हो। बहुत देर गुजर गई, सरदार के वहशियाना रक्स में कोई कमी नहीं आई। और फिर जब सरदार ने एक जोरदार चीख के साथ दोनों हाथ मंदिर की तरफ उठाकर शोगामा का नारा बुलंद किया तो बिजली के जोर से लहराई और एक लम्हे के लिए सारी फिजा रोशन हो गई। अब शोगामा के नारे मुसलसल बुलंद होने लगे थे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरी बार सरदार के मुंह से एक क्रीख चीख शोगामा की आवाज के साथ निकली। फिजा में जोरदार गिड़गिड़ाहट की कान फाड़ आवाजें सुनाई दी। हवाएं बलाओं की तरह चीखी। दरख्तों और झाड़ियों की सरसराहटें शाएं शाएं की खौफनाक आवाज में तब्दील हो गईं। और फिर फजा के कंधों पर तैरती हुई एक खौफनाक आवाज की बाज गश्त हर तरफ लहराने लगी। शामा! फिजा में बाज गश्त सुनाई दी। सरदार ने सजदे से सर उठाया। उसके होंठों पर लरजती हुई मुस्कुराहट उभरी। देवता! उसके होंठों से हल्की सी आवाज निकली। शामा, तूने हमें पुकारा। आवाज में चट्टानों की सी सख्ती थी। देवता, मेरी बेटी शाजी। सरदार ने कुछ कहना चाहा। हम सब जानते हैं, तुझे इजाजत है। आ, हम तेरा इंतजार करेंगे। सरदार उठकर आगे बढ़ गया। एक बार फिर फिजा में गिड़गिड़ाहट गूंजी, बिजली लहराई और सरदार फिर बिजली की चमक में नहा गया। और उसके साथ ही मंदिर का दरवाजा चड़चड़ाता हुआ खुल गया। घंटियों का शोर लहजा ब लहजा बढ़ता जा रहा था। उसी शोर में दरवाजे की चड़चड़ाहट कम हो गई। मंदिर के गिर्द फैली हुई स्याह घास हिलने लगी, जैसे शाम फन उठाए लहरा रहे हों, गोया उनका इस्तकबाल कर रहे हों। फिर वो वक़्त भी आया जब उनके सामने शाजी खड़ी थी, एक अजीब रूप में। उसके जिस्म पर नाग देवता की खाल थी। उस जर्दी माइल रंग की खाल पर जगह जगह नाग देवता की छवि कुंडली मारे हुए मौजूद थी। ये खाल उसके दाएं शाने को ढांपती हुई पिंडलियों तक चली गई। उसका बायां शाना नंगा था, दायां बाजू भी खाल में छुपा हुआ था। उसके सर पर एक सुनहरी ताज था, बिल्कुल नाग देवता जैसा। वो मुकम्मल नागन बन चुकी थी, मुकम्मल नागन। सरदार आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसने एक बार शोगामा का नारा लगाकर उसे ताज़ीम दी और उल्टे पांव चलता हुआ शाजी के करीब आ गया। शामू भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आ गया। सरदार ने उसे भी अपने दूसरे बाजू में लेकर सीने से लगा लिया। शामू ने आहिस्ता से शाजी के हाथ पर चुटकी ली। शाजी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। शामू ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और चौंक पड़ा। उसने एक बार फिर गौर से उसकी आंखों में देखा और उसके बदन में सनसनाहट दौड़ गई। शाजी की आंखों में उसे नाग देवता की छवि नजर आई थी और उसके माथे पर भी नाग देवता की छवि सुनहरे रंग में चमक रही थी। तो क्या, उसने सोचा, हाँ शामू, मैं नागन बन चुकी हूँ। शाजी ने उसे अपने चमकदार आंखों से देखते हुए मुस्कुराकर उसकी बात काट दी। शामू हैरत ज़दा रह गया। शाजी ने उसके दिल की बात कैसे जान ली? सरदार ने आहिस्ता से उनको अलग कर दिया। फिर वो तीनों उल्टे पांव चबूतरे से की सीढ़ियों से नीचे उतर आए। सरदार की खुशी का कोई ठिकाना ना था और शाजी, वो तो हर बात को भूलकर उस वीराने से बहुत दूर शहर में बाबू के पास पहुंच गई थी। अचानक सरदार ने हाथ उठाकर उन्हें रुक जाने का इशारा किया। उनकी आंखें सामने जमी हुई थीं,
جہاں ایک بہت بڑا اژدہا موجود تھا۔ وہ اپنا غار نما منہ کھولے ان کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ اس کی منہ سے شعلے نکل رہے تھے، اور جب وہ منہ کھولتا تو اس کی 2 فٹ لمبی زبان باہر نکل آتی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آگ کے شعلے ہر وہ چیز جو ان کے سامنے آ رہی تھی خس و خاش کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے آگ ہی آگ پھیلی ہوئی تھی، اور ان گنت بچھو اور سانپ اس آگ میں جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے تھے وہ گھبرا کر ان کی طرف ریلے کی صورت میں بڑھے چلے آ رہے تھے۔ سردار نے اس نازک صورتحال کا اندازہ لگایا۔ اچانک وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کے سروں میں دھماکے ہونے لگے۔ سردار کے ساتھ آئے ہوئے 2 خادموں میں سے ایک اڑتا ہوا اژدہے کے منہ میں جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں بڑی کربناک تھیں۔ سردار کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے پیچھے کر لیا اور خود ان کے آگے چٹان کی مانند جم کر کھڑا ہو گیا۔ سردار نے آہستہ سے چوغے میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں تھیلی دبی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ کھولا اور چٹکی بھر کر راکھ نکال کر تھیلی بھر جیب میں رکھ لی۔ اژدہا ان کے بالکل سامنے آ چکا تھا، ان سے تقریباً 6 فٹ دور، اور وہ آگ پھیلا رہا تھا۔ سردار نے شو گاما کا لفظ سرسراہٹ کے انداز میں ادا کیا اور راکھ اژدہے کی طرف اڑا دی۔ راکھ اس پر موت بن کر جھپٹ پڑی۔ اژدہے تک پہنچتے پہنچتے راکھ ایک بہت بڑے شعلے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس شعلے نے اژدہے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اژدہے کے منہ سے یکا یک ایک زبردست کراہ نکلی اور وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ سردار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اژدہے کی کراہیں مستقل صورت اختیار کر گئیں۔ اس کی فلک گاف چیخ نما کراہیں دل کو ہلا رہی تھیں، اور ہر کراہ سن کر یوں لگتا تھا جیسے گنگاشا کا لفظ ابھرا ہو۔ چند لمحوں بعد وہاں اژدہے کی بجائے راکھ کا ڈھیر پڑا تھا، اور ان کو یکا یک جھرجھری آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ان کے قریب سے گزر گیا۔ انہوں نے اطمینان بھری سانس لی، ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر چل پڑے۔ ان کی آنکھیں اپنے ایک ساتھی کی موت پر نم ہو چکی تھیں۔ کافی دور آ جانے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں نکلے۔ کھلے میدان کو پار کرنے لگے، لیکن ابھی وہ میدان کے درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ ان کو رک جانا پڑا۔ ایک بہت بڑا نیولا ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ ایک بڑا پتھر لگتا تھا، لیکن اس کے قریب آتے ہی اس میں حرکت آ گئی۔ وہ اپنا سرخ منہ اٹھائے انہیں اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں سے گھورتا چلا آ رہا تھا۔ سردار نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور چند لمحوں بعد آنکھیں کھول دیں۔ اس نے نظریں گھما کر شامو کے ساتھ لگی کھڑی شاجی کو دیکھا۔ شاجی اور سردار کی نظریں ایک لمحے کو ملیں اور سردار نے آنکھیں ہٹا لیں۔ شاجی نے شامو کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس سے الگ ہو گئی۔ دیو کامت نیولا ان سے تقریباً 10 فٹ دور رہ گیا تھا۔ اب اس کی رفتار کچھ اور کم ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک دم حملہ کر دے گا۔ پھر سردار نے اپنے ہونٹوں میں کچھ پڑھ کر پھونک مار کر اپنی جگہ واپس آ گیا۔ پھر شاجی کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ سکوت میں ڈوبی ہوئی فضا درہم برہم ہو گئی۔ وحشیانہ نعرہ گونجا 3 دفعہ۔ فضا کا سکوت ٹوٹا۔ شو گاما! اور شاجی نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ نیولا اسے اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ شاجی نے ایک پھریری لی اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے بابن اور شامو کو ایک عجیب منظر دیکھنا پڑا، جو صرف ایک لمحے کے لیے ہی ان کو حیرت زدہ کر سکا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ شاجی کی جگہ ایک ناگن کنڈلی مارے بیٹھی اپنا پھن لہرا رہی تھی۔ اس کی بے چین زبان بار بار اندر باہر آ جا رہی تھی،
اور پھونکاروں سے شعلے نکل رہے تھے جو اڑ اڑ کر نیولے کی طرف جا رہے تھے۔ نیولا ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے حملہ کرنے کے انداز میں اپنے جسم کو سکیڑ لیا۔ اس کا پیٹ زمین پر لگ گیا، اس کی آنکھیں ایک بار وحشیانہ انداز میں چمکیں، منہ سے ایک گراہٹ سی خارج ہوئی۔ اس نے جست لگائی اور ناگن پر آ رہا۔ ناگن نے اپنے پھن کو حرکت دی۔ اس کا پھن تو نیولے کی ضد سے بچ گیا، لیکن دم اس کے منہ میں آ گئی۔ ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے۔ ناگن کا پھن نیولے کی بھاری بھرکم جسم کے نیچے دب گیا تھا اور وہ لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس کی دم زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اپنا پھن چھڑانے کے لیے پوری طاقت صرف کر رہی تھی۔ نیولے کی بے پناہ وزنی جسم کے نیچے اس کا پھن دب گیا۔ نیولے کے بڑے سے منہ میں اس کی دم دبی ہوئی تھی، پھر اس میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ خون کا ٹپکنا تھا کہ جیسا ناگن کے جسم میں برقی رو دوڑ گئی۔ اس نے ایک زوردار پلٹا کھایا اور نیولا دوسری طرف الٹ گیا، لیکن ساتھ ہی ناگن بھی الٹ پلٹ ہو گئی، کیونکہ نیولے نے اس کی دم نہیں چھوڑی تھی۔ تاہم اس کا پھن آزاد ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار پھونکار ماری اور زمین پر آگ لگ گئی۔ گھاس نے آگ پکڑی۔ نیولے نے اپنی نوکدار ناخن ناگن کے جسم پر گاڑنا چاہے، لیکن اب وہ مزید زخم لگوانے کو تیار نہ تھی۔ اس نے منہ نیولے کی طرف موڑا اور زرد سے پھونکاری۔ آگ کا ایک بڑا شعلہ نیولے کی آنکھوں پر گرا اور اس نے زور سے چنگاڑ کر کراہتے ہوئے اس کی دم چھوڑ دی۔ ناگن آزاد ہو چکی تھی، پھر اس کی پھونکاریں مسلسل گونجنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد نیولے کے سارے جسم پر آگ لگ گئی۔ وہ جل رہا تھا، اس کے جلنے کی سڑاند پھیل گئی۔ ناخن آخری بار اس کی طرف منہ کر کے پھونکاری اور پرے رینگ گئی۔ نیولے کے منہ سے کراہنے نکل رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا، الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ آنکھیں تو پہلے ہی وار سے ضائع ہو چکی تھیں اور باقی جسم تقریباً جل چکا تھا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری، جیسے کوئی زخمی ہاتھی چنگارا ہو، پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کی چیخ صاف طور پر گنگاشا کی پکار سنائی دی تھی۔ ناگن اپنا پھن اٹھائے بڑے غور سے نیولے کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کا وجود بالکل ختم ہو گیا۔ اب وہاں بھی راکھ کا ڈھیر باقی تھا۔ سردار نے ناگن شاجی کی طرف دیکھا۔ اس نے زمین پر ایک پھونکار ماری۔ زمین پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ناگن نے جلدی سے ان بھڑکتے شعلوں پہ اپنی دم رکھ دی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی دم پر آگ پھیل گئی، صرف اس حصے پر جہاں زخم لگا تھا۔ وہ بڑے سکون سے شعلوں میں دم دیے بیٹھی رہی، پھر یکدم شعلے بجھ گئے۔ اس نے ایک بار آسمان کی طرف منہ کر کے پھن لہراتے ہوئے پھونکار خارج کی اور ایک شعلہ آسمان کی طرف کھلی فضا میں گم ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد اپنی دم کو زمین پر ٹکائے کھڑی ہو گئی، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ناگن کی بجائے شاجی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور سردار نے اسے سینے سے لگا لیا۔ سردار نے اس کے پیروں کو دیکھا، وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ شاجی نے مسکراتے ہوئے شامو کی طرف دیکھا، جو اب جواب میں مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ چل پڑے اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنی بستی میں پہنچ چکے تھے۔ وقت باد نسیم کے جھونکے کی طرح لہراتا ہوا گزر گیا اور شاجی کے ماں بننے کا وقت آن پہنچا۔ اس کے آگے آگ کا الاؤ دہک رہا تھا۔ ایک بہت بڑے پتھر کے پیالے میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ دو زانوں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ دائیں اور بائیں ایک تشت میں کوئی سفوف رکھا ہوا تھا۔ سروار وقفے وقفے سے ہاتھ بڑھاتا اور تھوڑا سا سفوف شعلوں کی نظر کر دیتا، تب آگ میں یکدم تیزی آ جاتی، اس کے شعلے بہت بلند ہو جاتے اور اپنی سرخ سرخ زبان نکال کر سردار کی طرف لپکتے۔ سردار آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتا جاتا اور ہاتھ اپنا کام کیے جا رہے تھے۔ اسے 3 راتیں ہو گئی تھیں، لیکن ابھی تک دیوتا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ مسلسل اپنا عمل کیے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عین وقت پر دیوتا اسے جواب ضرور دے گا۔ ابھی وقت نہیں تھا، اسی لیے دیوتا خاموش تھا۔
और फिर देखते ही देखते शामान देवता की फुंकार सुनाई दी। देवता सरदार ने सर झुका दिया। वक़्त आ गया है शामान, देवता का फन जोर से लहराया और एक खौफनाक फुंकार सुनाई दी। सरदार का जिस्म बिल्कुल साकत था। शामान, सुबह तेरे पास एक बूढ़ी औरत आएगी जो हकीकतन हमारी एक पुजारन नागन है। वो दाया का काम सर अंजाम देगी। देवता थोड़ी देर बाद खामोश हो गया। बच्चे के जन्म के बाद चौथे दिन देवता फिर पुकारा। वो औरत गायब हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे को झोंपड़े से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना कोई पांचवा शख्स बच्चे को देखने पाए। दाया, शामू, शाजी और तेरे सिवा कोई बच्चे को ना देखे, याद रहे। देवता रुक गया। कुछ देर बाद वो फिर फुंकारने लगा। उसे शाजी का दूध जो जहर है सिर्फ एक दफ़ा पिलाना और उसके बाद उसे खालस दूध पर पलना चाहिए। देवता हदायत देता रहा। जब उसकी उम्र 1 वर्ष की हो जाएगी तो हम फिर आएंगे। उस वक़्त असल में उसकी उम्र 18 वर्ष होगी, क्योंकि शाजी जिन मरहलों से गुजरी है उनका तकाजा यही था कि उसके बच्चे की उम्र बढ़ जाए। और चौंका वैसे भी अब वो नागन है, इसलिए उसके होने वाले बच्चे का वास्ता बराह रास्त हमसे है। उसे नागन हमने बनाया है और हम ही उसके बच्चे को उसकी मंजिल पर पहुंचने तक अपने ज़ेरे साया रखेंगे। देवता सरदार ने एक एक बात जहन नशीन कर ली। अच्छा शामान, हम जा रहे हैं। शोगामा तुम सब पर अपना साया रखे। एक ज़ोरदार फुंकारी गूंजी और मन यकदम सफ़ेद हो गया। उसकी निलाहट खत्म हो गई। एकदम पत्थर के प्याले में शोले भड़क उठे। देवता जा चुका था। मन बिल्कुल असली हालत में आ चुका था। उसमें से देवता की जिंदा छवि गायब हो चुकी थी। सरदार ने कुछ पढ़कर मन पर फूंक मारी और मन को उठाकर आहिस्ता से शोलों की नज़र कर दिया। शोले एक लम्हे के लिए तेज हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे, जैसे वो मन के अंदर समा रहे हो। चंद लम्हों बाद वहां शोलों का नामो निशान तक न था। फिर जो कुछ नाग देवता ने कहा था सब कुछ वैसे ही हुआ और शामी की एक बच्ची पैदा हुई जिसे 1 साल तक उसी तरह छुपा कर रखा गया। और जब वो 18 वर्ष की हुई तो उसे नाग ने बतौर बुलाया कि उसे यहाँ लाओ, हम उसे उसके असल रूप में ले आएंगे। सरदार जल्दी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो उसके हाथों पर रेशम की खाल में लिपटी हुई सोई हुई शागी थी। वो 6 साल की मालूम होती थी, हालांकि उसकी ज़ाहरी उम्र सिर्फ 1 साल थी और बातनी उम्र 18 वर्ष। इसे हमारे पास लिटा दो शामान, देवता फुंकारा। सरदार ने हस्बे हदायत शागी को मन के पास लिटा दिया। शाजी का सर मन के पास और टांगें दूसरी तरफ थीं। देवता अपना फन लहराता हुआ फन शागी की तरफ मोड़ दिया। एक बार जोर से लहकार कर फुंकार मारी। एक हल्की सी कड़कड़ाहट उभरी और मन में रोशनी की लहर निकली, सुनहरी रोशनी की लहर जिसने शागी के जिस्म को अपने हिसार में ले लिया। शागी कपकपा कर रह गई। उसकी आंखें खुल गईं। वो बिल्कुल साकत हो गई। शाजी ने शामू को शाना दबा लिया। माँ थी ना। देवता ने एक बार फिर जोरदार फुंकार खारिज की और रोशनी की लहर आग के शोले में बदल गई। शोले ने शाजी के जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। उसका जिस्म उसकी नज़रों से उज्जल हो गया। शोले का हिजम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। फिर उस शोले में देवता का मन भी छुप गया। काफ़ी देर गुजर गई। तब एक जोरदार फुंकार की गूंज से वो सब चौंक पड़े। उनकी आंखों ने एक हैरतनेक मंजर देखा। शोला बुझ चुका था। वहां अब शागी की बजाय एक नौजवान खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी। नाग देवता का मन उसके सीने पर रखा हुआ था। फिर आहिस्ता से मन हिला। लड़की के जिस्म में हरकत हुई और उसने अपने खूबसूरत हाथों से मन को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। मन में नाग देवता फुंकार रहा था। लड़की आहिस्ता से उठकर बैठ गई और नाग देवता के सामने सर्वसजूद हो गई। शागी, देवता फुंकारा। देवता, लड़की के होंठों से शीरी आवाज निकली और शामी और शाजी ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। शागी, उनके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। उन्होंने सरदार की तरफ देखा और उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया।
शागी इधर चली आ, शाजी यहाँ आओ, और शामू तू भी, देवता ने अपना फन लहराते हुए हुक्म दिया। शाहजी, हम जानते हैं कि तू हैरत ज़दा है, लेकिन इसमें हैरत की क्या बात है? हमने तुझे एक ही नज़र में नागन का रूप दे दिया था, तो शागी को बदलते हमें क्या दे लगती? फिर बातनी तौर पर वो है भी 18 वर्ष की, हम उसे उसके असली रूप में ले आए हैं। देवता, शाहजी कुछ और झुक गई। तुझे अपना काम मुकम्मल करने में काफ़ी मुश्किलात आईं, मगर हिम्मत ना हारना, हम हर मौका पर तेरे साथ होंगे। फिर तुझे एक कुर्बानी देनी पड़ेगी शाहजी। कैसी कुर्बानी देवता? शाहजी ने अदब से पूछा। ये वक्त बताएगा, लेकिन तुझे बगैर किसी हीलो हुज्जत के वो कुर्बानी देना पड़ेगी। देवता खुश रहे। शाहजी ने उसकी तरफ जवाब दिया। फिर वो वक़्त भी आ गया जब शाहजी शहर में बाबू के बंगले पर जा रही थी। वो उस पर पढ़ते चले जा रहे थे एक नई मंजिल की तरफ। चंद लम्हों बाद उनका वजूद शाम की स्याही में गुम हो गया। लेकिन शौकत साहब तो अरसा हुआ ये बंगला हमारे हाथ फरोख्त करके शहर जा चुके हैं, नौजवान ने जवाब दिया। आपको उनका पता मालूम है? शामू ने दखल अंदाजी की। जी, घर का पता तो नहीं, अलबत्ता एक दूसरी जगह का पता बता सकता हूँ। वो रीना क्लब में अक्सर आते रहते हैं, वहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अब वो वहाँ आपको मिलेंगे ये नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया, शाहजी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं। वो आदमी गड़बड़ा गया। उसकी नज़रें शाहजी की नज़रों से टकरा गई थीं। लेकिन ये क्लब है कहाँ? शामू ने फिर पूछा। आपके शहर में किसी भी टैक्सी वाले से कह दीजिएगा, वो आपको पहुंचा देगा, लेकिन ये क्लब सिर्फ रात को खुलता है, वो तफसील से बताते हुए बोला। शुक्रिया। वो उठ खड़ी हुई। शाहजी इस अरसे में ड्राइंग रूम का जायज़ा लेती रही, जो नहायत नफासत से सजा हुआ था। फिर वो नकाब की सूरत में उनके पास पहुंचा तो शौकत चीख पड़ा। नकाबपोश ने एक नज़र सांप की तरफ देखा। वो ज़ोर से फुंकार फन लहरा कर रह गया। तब वो आहिस्ता से शौकत की तरफ पलटा। मैं कौन हूँ? पहचान सकते हो तो पहचान लो। उसने सर से फ्लैट उतार दिया, फिर उसकी गौर से देखते हुए चेहरे से नकाब उतार दी, और शौकत का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो एक पुरानी मगर आशना ना भूलने वाली सूरत को देख रहा था। शामू, उसकी आवाज़ हल्क में फंस कर रह गई। ओह, अभी तक याद है? शामू तंजिया अंदाज में बोला। अगर शामू मौजूद है तो शाहजी को भी यहीं कहीं होना चाहिए। वो इधर उधर देखने लगा, फिर उसकी नज़रें शागी पर जम गईं। उसके नकूश में उसे शाहजी के चेहरे की हल्की सी झलक नजर आई। लेकिन नहीं, ये शाहजी नहीं हो सकती। ये उससे काफ़ी कम उम्र है। उसने अपने ख्याल की खुद ही तरदीद कर दी। बाबू, वो चौंक कर शामू की तरफ देखने लगा, जो उसे बड़ी जहरीली नज़रों से देख रहा था। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भी यहीं मौजूद है, तुम्हारे पास। शामू की आवाज़ में नरमी का कोई अंसर ना था। कहाँ? वो गर्दन मोड़कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई ना दिया। सफ़ेद बर्फ फैली हुई थी, और बस। वो फिर शामू की तरफ देखने लगा, जो तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। नहीं दिखाई दी? वो आहिस्ता से बोला, और शौकत की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। शाहजी तुम्हारे सामने ही तो बैठी है, तुम्हारे पास। वो हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से उछल कर रह गया। उसके सामने तो सांप कुंडली मारे बैठा था। वो पीठ के बल खौफजदा अंदाज में पीछे गिर गया, और वो लर्ज गया। हाँ बाबू, अभी तो ये उसका एक रूप है। शामू फिर हंस पड़ा। यकायक नागन के जिस्म में जोरदार हरकत पैदा हुई। वो उछली और शौकत पर आ रही। शौकत के हलक से एक खौफजदा चीख उभरी। वो उठकर भागने लगी, लेकिन नागन उसके जिस्म से उड़कर उसके सामने आ गई। शौकत रुक गया। वो खौफजदा अंदाज में दूसरी तरफ भागा, लेकिन नागन उछलकर उसी तरफ आ गई। वो जिस तरफ जाता, नागन उसका रास्ता रोके खड़ी थी। फिर वो पीछे हटता हटता शामू के कदमों पर आ गिरा। उसने मुड़कर देखा। शामू सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ा उसे ही घूर रहा था।
उसने उसके कदमों पर सर रख दिया। शामू मुझे बचा लो, शामू मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगा, सारी दौलत दे दूंगा, मुझे बचा लो। शामी के होंठों पर एक तहकीर अमीज मुस्कुराहट फैल गई। उसने जवाब में एक जोरदार ठोकर रसीद की। वो कलाबाजियां खाता हुआ बर्फ पर उलट गया। उसके होंठ फट गए और अगले 2 दांत टूटकर हलक में जा पड़े। सफेद सफेद बर्फ पर सुर्ख सुर्ख खून फैल गया। शौकत ने अपने उल्टे हाथ से खून साफ किया और दहशत ज़दा नज़रों से अपने सामने कुंडली मारी बैठी नागन को देखने लगा। फिर नागन आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से बुलंद होने लगी। फिर वो दुम के बल ज़मीन पर खड़ी हो गई। एक ज़ोरदार फुंकार गूंजी और शौकत खौफ से लर्ज़ कर पीछे हट गया। फिर शौकत जोरदार से चीख से उठ पड़ा हुआ, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। ठीक है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, लेकिन अपना इंतकाम ज़रूर लूँगी, अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगी। शाहजी गर्दन तान कर बोली। नहीं, वो फिर चीखा। शाहजी उसकी तरफ बढ़ी। बाबू, मैंने तेरी ख्वाहिश का एहतराम किया है, तुझे भी मेरी आग को ठंडा करने में मदद करनी चाहिए। मैं तेरा शोहर हूँ शाहजी, वो रोते हुए बोला। शोहर, उसने हकारत से ज़मीन पर थूक दिया। नहीं बाबू, तू मुझे अपनी बीवी होने के हक से महरूम कर चुका है। वो नफ़ी में सर हिलाकर जहरीले लहजे में बोली। शाहजी, वो गड़गड़ाया। हाँ बाबू, मेरे पेट में तेरा बच्चा था, लेकिन तूने मुझे ठोकरें मारी और घर से निकाल दिया। याद कर बाबू, तूने मुझे अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया था। तूने मेरे सामने मुझे दुख तकलीफ गम देने के अलावा मेरा दिल जलाने के लिए अपनी अयाशियों की खातिर रंग रलियां मनाई। मैं खामोश रही। वो गर्जने लगी। तू मुझे हर रोज़ पीटता था, मैंने उफ ना की। तू मुझे नौकरों से बदतर सलूक करता रहा, मैं सहती रही। तू मुझ पर जुल्म करता रहा, मैं तेरी राहों में आंखें बिछाती रही। तूने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सारी रात सर्दी में अकड़ती रही, तुझे पुकारती रही, तुझे रहम ना आया। मैं तेरे पाँव पर गिरकर तुझसे माफ़ियाँ मांगती रही, तूने मुझे ठोकरों पर रख लिया। तू दूसरी लड़कियों के सामने मुझे जलील करता रहा, मारता रहा, और मैं चुप रही। और फिर तूने मुझे घर से निकाल देने के साथ ही अपनी बीवी मानने से भी इनकार कर दिया। और तब मैंने कहा था कि तुझसे इंतकाम ज़रूर लूँगी, और तू हकारत से हंस दिया था। बता बाबू, मैं तुझे कैसे माफ़ कर दूँ? वो चीख पड़ी। शाहजी, रहम कर। वो नफ़रत से बोली। मैं तुझसे वादा कर चुकी हूँ बाबू कि तुझे जान से नहीं मारूंगी, पर तू क्यों घबराता है? मुझे भी तो अपने अरमान निकाल लेने दो। वो आगे बढ़ी। शाहजी, और शाहजी रुक गई। उसने मुड़कर शामू की तरफ देखा और शामू ने शागी की तरफ देखा। ओ हाँ बाबू, शाहजी को जैसे कुछ याद आ गया। मैं तो भूल ही गई। इधर आ शागी। उसने शागी को बुलाया और वो उठकर उसकी तरफ आ गई। आसफ वैरान नज़रों से सब कुछ देख रहा था। शागी, ये तो शौकत हकलाया। हाँ बाबू, ये सलमा है, लेकिन हकीकत में शागी है। और जानता है ये कौन है? वो हकारत से बोली। कौन है? वो हैरत से बोला। ये तेरी बेटी है। वो गर्जी। नहीं, वो चीख पड़ा। हाँ बाबू, हाँ, मेरे पेट में जो तेरा बच्चा था वो शागी के रूप में तेरे सामने है, लेकिन 2 साल में। हाँ, ये बात तुझे ज़रूर बेयकीनी में मुब्तला कर सकती है, लेकिन मैं तुझे इसका सबूत दूंगी। वो होंठ भींच कर बोली। उसी वक्त आसमान पर चमकता हुआ सूरज बादलों की ओट में चला गया। हर तरफ एक पुरस्रार सी फिजा कायम हो गई। बादल घिर आए। यूं लगता था जैसे अभी बारिश होने लगी हो। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और फिजा में पुरस्रारियत बढ़ने लगी। शाहजी नजरें उठा, चंद लम्हे तक आसमान को देखती रही। शागी और शामू भी उधर देख रहे थे। शौकत को उनको देख रहा था। फिर उनके चेहरों पर जोश के आसार फैल गए। देवता! उनके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। उसी वक्त बादल जोर से गरजे, बिजली और जोर से चमकी। फिजा में एक लहराते हुए सांप की शबीह बनती चली गई। दूसरे ही लम्हे शबीह मिट गई। शौकत बुत बनकर रह गया।
आसिफ इसी हालत में बैठा था। दूसरी और तीसरी मर्तबा फिर बादल पूरी ताकत से गरजे और बिजली फिजा में एक बात बहुत बड़े लहराते हुए सांप की शबीह बनाती चली गई। वो तीनों सजदे में गिर गए। शौकत बिल्कुल साकत हाथ जोड़े बैठा था। आसिफ की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। यकलख्त फिजा में बदरूहों की सी चीख गूंज उठी। फिजा में बार बार देवता की शबीह बनने और मिटने लगी। बदरूहों की चीखें आवाजों में तेजी आती चली गई। वो सजदे में पड़े रहे। एक बार फिर बादल पूरी कुव्वत से गड़गड़ाए, बिजली चमकी और फिजा में खामोशी छा गई, जैसे जहन्नम का दरवाजा बंद हो गया हो। शौकत को सकता हो गया। कभी फिजा, कभी एक खौफनाक थरथराती और अजीब सी आवाज से उसे गूंज उठी, शाजी, शाम्बू, शागी, मेरे पुजारियों, देवता। वो तीनों सर उठाकर बोले और उनके सामने नजरें देखा। देवता की लहराती हुई शबीह बिजली की चमक में फिजा में मौजूद थी और वो सर झुकाकर दो जानू होकर बैठ गए। मेरे बच्चों, देवता की आवाज आई। देवता, उनकी आवाजें इकट्ठी उभरी थीं। वक़्त आ गया है शाहजी। हुक्म देवता, पहले इस दरिंदे को इसकी बच्ची दिखा दे शाहजी। देवता की गजबनाक आवाज आई। देवता, शाहजी सर उठाकर बोली। इधर शौकत को भी होश आ गया। उसे सामने चमकती हुई देवता की शबीह साफ लहराती नजर आ रही थी और आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो फिर खौफजदा हो गया। उसकी घगी बंद गई। शाहजी, देवता, शाहजी को आगे भेज दे। और शाहजी ने शागी को आगे धकेल दिया। दूसरे ही लम्हे देवता की शबीह से जोरदार रोशन लहर खारिज हुई और उड़ती हुई शागी पर आ पड़ी। सबकी आंखें खैरा हो गईं और जब उन्होंने आंखें खोली तो शागी की जगह 2 साल की बच्ची बर्फ पर पड़ी हाथ पांव मार रही थी। शाहजी ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और शौकत के पास ले आई। ले बाबू, देख ले, ये तेरी बच्ची है। अब तो तुझे यकीन आ गया है कि सब देवता का करिश्मा है। मेरी बच्ची, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया और सर उठाकर बच्ची को देखने लगा। लेकिन इसका क्या सबूत है कि ये मेरी ही बच्ची है? वो कुछ देर बाद बोला। बाबू, वो चीख पड़ी। उसका चेहरा लाल भभूका हो गया, आंखों में आंसू छलक आए। शौकत ने बराह रास्त उसकी इज्जत पर हमला किया था। तू कुत्ता है बाबू, जलील है, कमीना है। वो उस पर थूकती हुई बोली। तेरी ही बच्ची है बाबू, जिससे तू आज तक दस्त दराजी करता रहा, उसे अपनी महबूबा बनाता रहा। वो नफरत से बोली। उसका गुस्सा बढ़ता रहा और शौकत के रहे सहे और शान भी खता हो गए। शाहजी, मैं तो वो कुछ भी ना कह सका और खौफ ज़दगी के आलम में थूक निगल कर रह गया। बाबू, तूने इस बात का सबूत मांगा है कि ये तेरी बच्ची है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि तू बेगैरत इसे पहचान ना सका। तेरे खून ने इसे देखकर जोश ना मारा। तू इसे बुरी नीयत से देखता रहा, बुरे इरादों से इसकी तरफ बढ़ता रहा, लेकिन तू एक बार भी ना कांपा। एक बार भी तेरे दिल में तड़प पैदा ना हुई। बेगैरत है ना, और बेगैरत कभी अपने पराई की पहचान नहीं कर सकता। और अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। देवता, इजाजत दे, मुझे इजाजत दे देवता। वो पलटकर देवता की तरफ रुख करके बोली। इजाजत है मेरी बच्ची। देवता की थरथराती हुई आवाज आई। देवता, मैं इससे वादा कर चुकी हूँ कि इसे जान से नहीं मारूंगी। ठीक है शाहजी, ये मरेगा नहीं, लेकिन जिंदों में भी नहीं रहेगा, देवता ने कहा। शौकत ने खौफजदा नजरों से इधर उधर देखा। उससे कुछ ही फासले पर शाहजी खड़ी उसे कहर आलूद नजरों से घूर रही थी। शागी, शाहजी की आवाज आई और वो तेजी से चलती हुई उसके करीब आ गई। इसे जानती हो ये कौन है? ये शौकत है जो मेरी इज्जत के दर पे था माँ। वो नजरें झुकाकर नफरत से बोली। नहीं शागी, ये तेरा बाप है। क्या? शागी की आंखें हैरत से फट गईं। हाँ शागी, ये तेरा बाप है। बाप अपनी बेटी की अजमत लूटना चाहता था। शाहजी कहका लगाकर बोली। नहीं, ये मेरा बाप नहीं हो सकता। शराबी, अयाश,
وہ منہ چھپا کر بھاگتی ہوئی شامو کے پاس چلی گئی۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور شاگی ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ شاجی برف کے فرش پر دو زانو بیٹھ گئی۔ اس نے ایک زوردار نعرہ لگایا، شو گاما، اور دوسرے ہی لمحے وہ ناگن کے روپ میں ڈھلنا شروع ہو گئی۔ نہیں نہیں، شوکت چیختا ہوا بھاگ نکلا، لیکن اس کی تیز رفتاری کا وہ مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے آگے موجود تھی۔ شوکت بھاگ کر جس طرف جاتا، ناگن کو اپنے سامنے پاتا۔ پھر وہ برف کے ایک تودے سے ٹکرا کر گر پڑا۔ ناگن بھی پھن اٹھائے اس کی طرف بڑھی۔ شوکت موت کے خوف سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے چیخا، اور اسی وقت ناگن اڑتی ہوئی اس پر آ رہی۔ ایک تیز چیخ شوکت کے حلق سے آزاد ہوئی۔ ناگن نے اس کے ماتھے پر ڈس لیا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، زمین سے کئی فٹ اوپر اچھل رہا تھا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ وہ تڑپتا رہا، اور پھر شاکی اور شامو نے وہاں ایک عجیب الخلقت شے کو دیکھا۔ شوکت کی جگہ اب وہاں ایک کری شے موجود تھی۔ انسانوں ہی کی طرح کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں تھے، 2 بازو، 2 ٹانگیں، ایک ناک، لیکن وہ انسان تو کیا جانور بھی معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کا سارا جسم پھول گیا تھا، رنگت سیاہی مائل زرد ہو گئی تھی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں بڑے بڑے آبلے نہ ہوں، اور ان سے سیاہی مائل کی پیپ بہ رہی تھی۔ آنکھوں کا رنگ زرد ہو چکا تھا، سرخ زبان باہر لٹک رہی تھی، جس پر سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے بے شمار کیڑے رینگ رہے تھے۔ وہ ہانپ رہا تھا جیسے کتا ہانپتا ہے۔ اس کی زبان اور جسم سے نکلتا ہوا گندا مواد سفید برف پر عجیب و غریب نقش و نگار بنا رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر خوف کے مارے گگی بند ہو جاتی تھی۔ شاکی نے شامو کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ وہ اس خوفناک منظر کو دیکھ نہ سکتی تھی۔ ایک آصف ہی تھا جو بالکل خاموش ویران نظروں سے خلا میں گھور رہا تھا۔ وہ شاجی کی مقناطیسی اثر میں تھا، اور شاجی انسانی روپ میں آ کر شوکت، دولت مند شوکت، لڑکیوں کے شکاری شوکت، خوبصورت شوکت کو دیکھ رہی تھی اور کہکے لگا رہی تھی، بابو میں ہوں شاجی، اور یہ ہے جنگلی شاجی کا انتقام۔ وہ پھر کہکے لگانے لگی۔ شوکت، جسے اب انسان کہنا غلط تھا، برف کے فرش پر چیونٹیوں سے بھی ہلکی رفتار میں رینگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ کئی فٹ نیچے گڑھے میں گر پڑا، اور ایک عجیب سی کراہ اس کے منہ سے خارج ہوئی، جیسے کوئی بھیڑیا رویا ہو۔ بابو، وہ ہونٹ بھینچ کر زہریلے لہجے میں بولی، تو سب کچھ دیکھے گا، سب کچھ سمجھے گا، سب کچھ سنے گا، لیکن خود تو کتے سے بھی بدتر زندگی گزارے گا، کوئی تجھ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ شاجی دیوتا کی آواز سن کر یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ دیوتا کے سامنے جھک گئی۔ شاجی، اب تمہیں اپنا آخری فرض بھی پورا کرنا ہے۔ حکم دیوتا، میں نے تجھے بتایا تھا نا کہ تجھے ایک قربانی دینی پڑے گی۔ مجھے یاد ہے دیوتا، تو سن، تو یہ اسی قربانی کا وقت ہے۔ تو نے شاگی کی شادی آصف سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاں دیوتا، لیکن ان کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک شاگی مکمل طور پر انسانی صلاحیتوں کی مالک نہ بن جائے، ورنہ ان دونوں کی موت یقینی ہے۔ دیوتا، وہ تڑپ گئی۔ ہاں شاجی، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں اپنی شاجی کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ نہیں شاجی، تجھے جان دینے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر شاجی کو ہمیشہ کے لیے انسان بنانے کے لیے، اسے مکمل انسانی شکل دینے کے لیے، جس سے میں وہ کسی قسم کی غیر انسانی یعنی ناگن کی صلاحیتوں کی مالک نہ ہوگی، بلکہ ایک عام لڑکی ہوگی، تجھے ہمیشہ کے لیے انسانی روپ چھوڑ کر ناگن بن جانا ہوگا۔ اور شاجی کا سارا جسم کانپ کر رہ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے سوچا، تو پھر شامو کیا کبھی اس کا نہ بن سکے گا؟ نہیں شاجی، شامو تیرا تھا، تیرا رہے گا، وہ تیرا، اور تو اس کی ضرورت بنے گی۔ ہم اسے بھی ناگ بنا دیں گے۔ اور شاجی کے لیے ہر طرف بہار ہی بہار پھیل چکی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہے دیوتا؟ میں تیار ہوں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔
देवता ने पुकारा और शागजी और शामू चौंक पड़े। शामू के दिल में खुशियों के गुलशन खिल उठे। वो झूम कर रह गया। देवता की आवाज पर शागी आगे आई और झुक गई। आखिरी बार माँ से मिल लो, इसके बाद तुम इसे कभी इस सूरत में ना देख सकोगी। माँ, मेरी बेटी, वो चीखी। दो दर्द भरी आवाजें उभरी और दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। पूरी ताकत से एक दूसरे को भींच लिया। उनकी आंखें बरस पड़ीं। शाजी ने रोती हुई शागी को बेतहाशा प्यार किया। वो उसके बालों, पेशानी, आंखों, होंठों, गालों और हर जगह पर मोहरे मोहब्बत सबत कर रही थी और शागी माँ को चूम चूम कर अपनी प्यास बुझाती रही। बेटी, वो कांपते हुए लहजे में बोली। उसके होंठों के गोशे लर्ज रहे थे। फिर देवता ने हुक्म दिया। शाहजी को कोई हैरत न हुई। देवता का हुक्म था और उसे उसकी तामील करना थी। शागी ने आंखें बंद करके चेहरा शाहजी के आगे कर दिया। शाहजी ने एक नज़र देवता की शबीह को देखा, फिर वो शाहजी के चेहरे पर झुकती चली गई। उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शाहजी की जुबान शाहजी के मुंह में दाखिल हो गई। शाहजी उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामे उसकी जुबान को चूसने लगी। शागी बेहसो हरकत खड़ी थी और शाहजी उसके जिस्म का सारा जहर, उसका नागन रूप अपने जिस्म में समोए लिए जा रही थी। वो चूसती रही और मवाद अपने हलक से नीचे उतारती रही। फिर एक अजीब मंजर देखने में आया। शाहजी के पांव पर सांप की कैंचली खींची गई। वो अब भी शागी की जुबान चूस रही थी। शागू को ऐसा लग रहा था कि शाहजी की जुबान उसके पूरे जिस्म में फिर रही हो, एक एक रग में सरायत कर गई हो। पांव से घुटनों पर, फिर रानों पर, फिर सीने पर, और अब उसके बाजू शागी के चेहरे से गायब हो चुके थे। अब सिर्फ उसका चेहरा रह गया था। शागी बेहोश होने के करीब थी। फिर शागी के चेहरे पर भी सांप की कैंचली खिंच गई। अब शागी के होंठों पर एक नागन अपना मुंह रखे हुए थी। वो मुकम्मल नागन बन चुकी थी और शागी वो मुकम्मल इंसानी रूप इख्तियार कर चुकी थी। नागन ने शागी के मुंह से अपना मुंह हटा लिया। उसके मुंह हटाते ही शागी धड़ाम से जमीन पर आ रही, लेकिन फर्श बर्फ का था, इसलिए उसे कोई चोट ना आई। वो बेहोश हो गई। नागन कुंडली मारे उसके करीब ही बैठ गई और जोर से फुंकारी। देवता, और देवता की थरथराती आवाज पुरफजार फिजा की सकूत को तोड़ती चली गई। शाहजी, तूने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। देवता की छवि में एक बार जबरदस्त चमक पैदा हुई और कड़कती बिजली ने शामू को अपनी लपेट में ले लिया। वो जल उठा, सूखे तिनके की तरह उसका जिस्म राख होने लगा। चंद लम्हों बाद वहां राख का ढेर पड़ा था। बिजली ने उसे खाक कर दिया था। एक बार फिर बिजली चमकी और उसने शामू की राख को लपेट लिया। राख में कई शोले पैदा हुए और उनसे धुआं निकलने लगा। धुआं इतना गहरा हो गया कि कुछ दिखाई ना दिया कि क्या हो रहा है। फिर तीसरी मर्तबा कड़क पैदा हुई और धुआं छट गया। शागी ने देखा कि नागन ने देखा कि शामू की जगह एक नाग कुंडली मारे बैठा है। वो अपना फन लहरा रहा था। देवता ने नागन को पुकारा और वो तेजी से रेंगती हुई नाग के करीब जाकर कुंडली मार कर बैठ गई। एक बार फिर बिजली चमकी और दोनों इसमें छुप गए। जब बिजली की चमक खत्म हुई तो उन दोनों के सिरों पर दो सुनहरे ताज जगमगा रहे थे, देवता के ताज। शौकत हाँफता हुआ ये सब कुछ देख रहा था। उसके जिस्म और जुबान से निकलने वाला मवाद अब भी बर्फ को गंदा कर रहा था। मेरे पुजारियों, शोगामा का हमेशा तुम पर साया रहेगा। और वो दोनों फुंकार कर रह गए। नाग और नागन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर नाग का चेहरा नागन के चेहरे पर झुकता चला गया। नागन ने कोई मज़ाहमत ना की। वो उसी तरह बैठी रही और नाग ने उसके होंठों पर अपनी पहली मोहर मोहब्बत साबित कर दी। बहुत देर बाद वो अलग हुआ। फिजा में देवता की छवि गायब हो गई। एक जोरदार कड़क पैदा हुई और उसने नाग और नागन को अपनी लपेट में ले लिया। नाग और नागन, शामू और शाजी एक दूसरे से लिपट गए।
ایک ہو گئے، ایک دوسرے کے منہ پر منہ رکھے لپٹے لپٹے ساکت ہو گئے۔ جب بجلی کی چمک ختم ہوئی تو وہاں ناگ یا ناگن کا کوئی وجود نہ تھا۔ اسی وقت اوپر سڑک پر کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، پھر انجن کی کھرکھراہٹ دور ہوتی چلی گئی۔ نیچے برف کے لامحدود فرش پر ایک عجیب الخلقت کرہن نظر عجیبہ وجود رینگتا ہوا آگے بڑھنے اور اوپر جانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور یہ شوکت تھا، مگر نہیں، شوکت نہیں، یہ شاہ کا ایک ناگن کا، ناگ دیوتا کی ایک پجارن شاہ کا انتقام تھا۔ اللہ حافظ دوستو۔